A zero order reaction is a reaction in which rate of the reaction is independent of concentration of reactant. So rate is directly proportional to, rather directly proportional बोल ही नहीं सकते because वहाँ पे concentration of reactant है ही नहीं. So I can write rate is equal to K. So if we plot a graph of rate versus concentration of K, we are getting a line parallel to x-axis. Now if you integrate this equation, we'll have, अभी मैं उसको रिवाइज नहीं करता इंटीग्रेशन को, ये एक्चुअली तुम लोग को लिखना था डेरिवेशन. आई डोंट नो वेदर यू हैव रिटन इट और नॉट. ओके, सिर्फ हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं आज को. So those who have written, very good. Those who have not written, write the derivation. मैं नीट वाले जो लोग हैं या जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, they should write this expression. उनको ये डेरिवेशन कम से कम 5 बार लिखना है, क्योंकि जेई मेंस, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, जो मैथ्स वाले लोग हैं उनको एटलीस्ट ये पता है इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट नीट वालों को ये पता नहीं है. सो दे नीड टू राइट दिस डेरिवेशन 5 टाइम्स. अगर मैं ऐसे बोलूं ना, सब लोग 5 बार लिखो डेरिवेशन, सब लोग. ओके, तो ये आ गया अपना इक्वेशन a0 minus at is equal to kt. This is called as integrated equation for zero order reaction. Now if you plot the graph at, concentration of reactant versus time t, I'm getting a graph with a negative slope, right? So ये एक हो गया. ठीक है, बाद में अगर समझो रिएक्शन में बोलो a with respect to how much concentration of reactant consumed, with respect to अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, एक बेटर. Okay. So now we are going to discuss one more concept in a zero order reaction only. That is nothing but half life period. हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? हाफ लाइफ पीरियड. ओके, सब लोग ध्यान से, ये हम लोगों ने पढ़ा है हाफ लाइफ पीरियड 11th स्टैंडर्ड में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. ठीक है, तो उसका ही एक, दिस इज काइंड ऑफ अ रिवीजन. बट याद रखना यहाँ पे इक्वेशन अलग रहेगा. इसको हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग लिखते हैं टी हाफ. ये हाफ जो है ना, ये हाफ 1/2 ये सफिक्स में है, और आई कैन राइट इट एज टी 0.5, और समटाइम इट इज ऑल्सो रिटन एज टी 50%. 50% मतलब ये ना हाफ हो गया. ठीक है, सो व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड? डेफिनेशन क्या है अगर रिकॉल करो, जो 11 में पढ़ा था हम लोगों ने. टाइम रिक्वायर्ड to decrease the concentration of reactant. Concentration of reactant to half of its initial value. Is called as half life period.
time required to decrease the concentration of reactant to half of its initial value is called as half life period. ओके, तो इसका मतलब ये ऐसा है, when AT, AT मतलब concentration of reactant after time t is equal to A0 by 2. Okay, so when AT is equal to A0 by T, then T is equal to T half. So what is our zero order reaction? So according to integrated equation for zero order reaction, क्या होगा? What should I write? A0 minus AT is equal to what? KT. So now I substitute these values in this equation. So A0 as it is, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा. AT के जगह पे मैं लिखूंगा A0 by 2. K T के जगह पे मैं लिखूंगा T half. करेक्ट? सो आगे क्या होगा बोलो? इसको अगर मैंने सॉल्व किया, देन व्हाट आई हैव? A0 upon 2K is equal to what? T half. So now I can say that half-life period, see, try to understand the language, huh? Half-life period for zero order reaction. Half-life period for zero order reaction is directly proportional to initial concentration. So अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया for zero order reaction, if I plot a graph, y एक्सिस में मैं ले रहा हूं t हाफ और x एक्सिस पे ले रहा हूं मैं A0 initial concentration, then I will have a graph passing through the origin, straight line graph passing through the origin. So zero order reaction में जैसे initial concentration बढ़ेगा, half life period भी क्या होगा? बढ़ेगा. So please write down this part. लिखते जाओ.
लिख के हो गया तो फिर मैं थोड़ा नीचे लेता हूं इसको, so that you can write this part also. Yes, done. ये डायग्राम, ये ग्राफ निकाल लो, ठीक है। चलो अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। ये हो गया जीरो ऑर्डर पूरा रिएक्शन। दिस इज हियर वी फिनिश्ड कंप्लीट जीरो ऑर्डर। Now let us move ahead for the next part, that is first order reaction. New page पे जाते हैं। Okay, first order reaction. सब लोग ध्यान दो अच्छे से यहाँ पे। Everybody just pay attention. What do you mean by first order reaction? The reaction in which rate of reaction is directly proportional to concentration of one of the reactants or one reactant. Okay, so same way, if I say A gives you product B, then rate of reaction is equal to minus dA upon dt is directly proportional to concentration of A. See the power 1 है ना, इसका पावर कितना है 1 है, करेक्ट। तो आगे क्या हो जाएगा, therefore minus dA upon dt is equal to what, K into concentration of A. So if I plot a graph, समझो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, क्या कौन सा ग्राफ रहेगा यहाँ पे बोलो। हाँ, इसमें किया ना हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में। वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे रेट। मैं ग्राफ क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यू व्हाट यू नीड टू से, अभी जितने भी ग्राफ मैंने बताया तुम लोग को, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को फॉलो करो और अपने इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करो, दैट्स इट। सो अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, y इज इक्वल टू mx,
y इज इक्वल टू mx है। इसका मतलब ये जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ कैसे रहेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अंडरस्टूड? ओके, चलो अभी इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं। सो मैं क्या करूंगा रीअरेंज मतलब, so I'm rearranging, so I can write it as minus dA upon A is equal to K into dt. So अभी मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट above equation, above equation। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए अपॉन ए is equal to integration of k into dt। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ln a। ln a मतलब नेचुरल, कल बताया था मैंने, log टू द बेस e, दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, सो kt प्लस c। c is a constant of integration। now I need to find out the value of c। तो वो मैं कैसे करूंगा? see, when t is equal to 0, so that means initial concentration। ये क्या हो गया? initial concentration। okay, when t is equal to 0, a is nothing but a0, so that a0 is called as what? Initial concentration। initial concentration of reactant। इसको मैं स्मॉल a भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, therefore ये क्या हो जाएगा? माइनस ln, ये हो जाएगा a0, kt की जगह पे हो जाएगा 0 प्लस c। therefore now I am getting a value for c। c is nothing but what? minus ln a0। अभी ये वैल्यू इस इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ एंड दिस इक्वेशन is called as equation 2। so I can say from equation 1 and 2 क्या होगा? बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ln at is equal to kt minus ln a0। okay, further I can write this as what? ln a0 minus ln at is equal to what? kt। okay, so what do you mean by this? log of a minus log of b is nothing but log a upon b। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ln a0 upon at is equal to what? kt। is that clear? समझ में आया? अभी देखो, इसको मैं अभी दो तरीके से लेके जा सकता हूं। एक तरीका ये है, यहाँ पे मैं इसका रेसिप्रोकल लिखता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ln, सो दैट ये हो जाएगा at अपॉन a0 इज इक्वल टू व्हाट? kt। ध्यान से देखना, नॉन मैथमेटिक्स वाले लोग जरा ध्यान से देखना, ये क्या किया मैंने? आई जस्ट रेसिप्रोकेट दिस, इसको मैंने रेसिप्रोकेट किया,
So when I reciprocate in case of log, we can change the sign. वो नेगेटिव हो जाएगा. Further, I'm going very slow, step wise जा रहा हूं मैं. समझ लेना हर एक स्टेप को. So ln at upon a0 is equal to what? Minus kt. Right? Further, I can write ये जो ln है ना, ये ln को मैं इधर लिखेंगे. तो जब मैं इधर लेके जाऊंगा, that becomes e, और ये वाली चीज e के पावर में जाए. So I have at upon a0 is equal to e raised to minus kt. Therefore, at is equal to a0 e raised to minus kt. This is integrated equation for first order reaction. Okay, ये भी एक इंटीग्रल. Now this equation shows the exponential curve. Exponential curve का मतलब क्या है? If I plot a graph, ध्यान से देखो अभी ये ग्राफ. If I plot a graph, अगर समझो मैंने y एक्सिस पे लिया concentration of AT और x एक्सिस पे लिया टाइम, तो जो ग्राफ रहेगा ना, that graph looks like this way. So this is the initial concentration A0. Now if you observe, I am getting a line, a curve मिलेगा, curve. Now this curve is touching to this T at infinite time. मतलब concentration of reactant becomes zero at infinite time. Concentration of reactant becomes zero at infinite time. समझ में आया? So this indicates the exponential curve. ये इस curve को क्या बोलते हैं हम लोग? Exponential curve. Okay? भी दूसरा देखो, जो हम लोग frequently use करेंगे. So ये जो है जैसा है वैसे का वैसे रखता हूं मैं. Just I am converting this into log. ये ln है ना, तो log to the base 10 में कन्वर्ट करता हूं. तो क्या हो जाएगा? 2.303 log of a0 upon at is equal to what? kt, or k is equal to 2.303 upon t log of a0 upon at. दोनों भी, वो भी और ये भी. This is the integrated equation. Integrated equation for first order reaction. Now remember that first order के लिए ये equation है, तो zero order के लिए equation अलग था. सब ग्राफ चेंज, सब कुछ चेंज यहाँ पे होगा. तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन अलग है, जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन अलग है. एग्जाम में अगर पूछा गया डेरिवेशन, देन डू नॉट राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, जस्ट राइट राइट हैंड साइड. मतलब ये जो पूरा यहाँ तक हम लोग आ गए डेरिवेशन में, वो कॉमन है. इसके आगे राइट हैंड साइड वाला डेरिवेशन दिखता है. डू नॉट राइट द लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेशन. क्लियर? यस. अभी थोड़ा मैं उसके साथ खेलता हूँ, मतलब उसके ग्राफ वगैरह मैं निकालता हूँ. ये डेरिवेशन भी तुम लोगों को लिखना है. दिस डेरिवेशन इज आल्सो यू आर सपोज्ड टू राइट. इसको 3 बार लिखना. 1 मिनट, मैं अभी एक बार लिखो पहले. राइट डाउन फास्ट. चलो लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जल्दी करो, जल्दी करो. राइट डाउन फास्ट.
अच्छा, अगर ये हो गया है तो थोड़ा नीचे आ रहा हूं मैं, ये नीचे वाला पार्ट लिख लो, ग्राफ वगैरह भी प्लॉट करना। Then you go for this, जल्दी करो।
मुझे तिलक नगर का कोई नहीं है, हर्ष है। हर्ष, बाकी लोग किधर है? पता नहीं सर। सो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ हम लोग अभी देख रहे हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of initial concentration A0 upon final concentration AT। करेक्ट? तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। KT अपॉन 2.303 is equal to log of A0 अपॉन 80। ठीक है, ये ग्राफ निकालने के लिए सब रीअरेंजमेंट कर रहा हूं मैं। सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं log ऑफ A0 अपॉन 80, ये y एक्सिस पे लिया मैंने, ठीक है, एंड x एक्सिस पे मैं ले रहा हूं t। सो ग्राफ कैसे होगा? ये पूरा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y इज इक्वल टू व्हाट? mx, a straight line graph passing through the origin। ठीक है, मेरे साथ ड्रॉ करते जाना। उसके बाद आगे लिख रहा हूं मैं KT अपॉन 2.303 that is equal to log of A0 minus log of AT। ठीक है, तो अभी क्या होगा? जस्ट आई एम रीअरेंजिंग दिस। log of AT is equal to log A0 minus KT upon 2.303। Now I am plotting a graph so y-axis y-axis में I am taking log of AT और x-axis पे मैं ले रहा हूं t। तो ये देखो, ये हो गया y इज इक्वल टू, ये हो गया x, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? माइनस mx प्लस c। तो अपना ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है विद नेगेटिव स्लोप ना। स्लोप here, slope is equal to what? Minus k upon 2.303 and y-intercept gives you what? Log A0। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दैट इज नथिंग बट हाफ लाइफ पीरियड। ये इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ा है इसका 11th स्टैंडर्ड में, हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज टी हाफ of first order reaction, first order reaction। Okay, so when AT is equal to A0 by 2, T is equal to T half। So मैं लिख रहा हूं T half is equal to 2.303 upon K log of initial concentration है A0 divided by A0 by 2। तो A0 A0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? T half is equal to 2.303 upon K log 2। Now log 2
का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर समझो मैंने इसको ln टर्म्स में लिखा, जस्ट आई एम राइटिंग हियर, कंफ्यूज मत होना, तो ये क्या हो जाएगा? ln 2 बाय k। नाउ log 2 का वैल्यू अगर तुम लोगों ने लॉग टेबल से देखा तो ये हो जाएगा t हाफ इज इक्वल टू, तो इसको मैं नीचे लिख, t हाफ इज इक्वल टू 2.303। अभी मुझे log 2 का वैल्यू पता है, तो आई एम राइटिंग 0.3010 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, साथ में लिख रहे हो ना मेरे? राइट इट डाउन द थिंग्स विथ मी। सो t half is equal to 0.693 upon k. This is the equation for half-life period of first order reaction. Now just look at in this equation. There is no concentration term. है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ? Therefore, half-life period of first order reaction is independent of concentration. So which means half-life period of first order reaction is a characteristic value of any given reaction. ठीक है, समझ में आया? हाँ, सो अगर समझो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, y एक्सिस पे मैं लिखता हूँ हाफ लाइफ पीरियड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन व्हाट शुड बी द ग्राफ? a line parallel to the x axis। और इसकी वजह से ना हम लोग को एक नया कंसेप्ट मिलता है। मतलब समझो अगर क्वेश्चन पूछा गया, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो एंड वी कैन यूज वन शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में तुम लोग को बताऊंगा बाद में। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? हाँ, यस, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क। ओके, क्लियर? चलो एक मिनट, ये वाला पार्ट थोड़ा जिसका लिख के नहीं हुआ लिख लो फटाफट। यस, एवरीबॉडी डन?
हो गया, समझ में आई है, ये ग्राफ भी समझ में आया, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी।